Please welcome in the class. In the previous classes we were describing about the single phase transformer and three phase transformers. And you know single phase transformer, there is application of single phase, in the domestic purposes we have the single phase supply. In the industries we have the three phase supply also. But here we will study the conversion of three phase to two phase. In the laboratory class also you might have studied the Scott connection. So today we will be discussing about the Scott connection. So what is the application of the Scott connection, or what is the application of two phase? You know single phase is very frequently being used, three phases again very frequently used, and two phases are used in the arc furnaces. There are some limited applications are there, but there is application we require the two phase. Similarly, we require the six phase, and we convert three phase supply to the three phase supply to the six phase supply. We convert three phase to the two phase. We convert three phase to the single phase also. So there is a need of various conversion from one phase to the another phase. So how it is done? Practically you have been exposed in the laboratory class that how it is done. It is done with the help of the two transformers. Two transformers means, say this is one transformer. This is one transformer, let it be T1, primary and secondary. This is another transformer. This is another transformer. This is primary and secondary. And we have to convert, the three phases are there, phase A, phase B, phase C. Input is three phase, we want output as a two phase. Input is three phase means here A to B, voltage between A to B, B to C and C to A. It is a three phase supply, means here you see supply is from here B, voltage between the B and C, this voltage is this, let it be line voltage VL with angle 0. So voltage between A and C, B and C, there are three phase supply given here. This three phase supply is like this. One phase is this, another phase is 120 degree in phase, another phase is again 120 degree in phase, means voltage across here to here it is VL, then V2 is again VL with 120 degree in phase, and C2A again VL with 120 degree in phase. So this is a phasor representation of the three phase supply given to this side. Is this clear or not? Now what we do here, the three phase supply is given here. Now this is a primary, this is secondary. This is one transformer, it is another transformer. In this transformer, in the transformer number 2, you see in the transformer number 2, the half of the winding is here, half of the winding is here, the one point is selected here, this one point here, the first transformer primary is connected. What will happen with this? The theory we will understand. And before understanding this theory, let us have this connection. Connection is made like this, that primary of the first transformer is connected half of the primary of the another transformer. What will happen with this? इससे होगा क्या? Voltage across B and C is this representation of B and C. Here it is represented voltage across B and C. This voltage from B to C, it is equal to the this VL. VL is the line voltage with angle 0. Okay. Now what will be voltage here in the middle of this? अगर यहां से लेके यहां तक वोल्टेज आपका VL है, तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा? हाफ ऑफ द वाइंडिंग, जो प्राइमरी वाइंडिंग है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर से 500, तो 250 टर्न्स हियर, 250 टर्न्स हियर, तो यहाँ टोटल वोल्टेज यहां से लेके यहां तक VL है, तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा? यहाँ कितना होगा? हाफ. तो दिस विल बी VL by 2, दिस विल बी VL by 2. दिस पॉइंट नेम ऑफ दिस पॉइंट लेट इट बी D. ये जो पॉइंट है इसका नाम हमने दे दिया D. Here this point is, say it is a D. Okay, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज VL by 2. तो जो एंगल एंड व्हाट विल बी फेसर एंगल? Angle of the voltage from B to C is 0, so they are in the same direction. So here angle will be 0 and 0. Okay. Now what will be the voltage across C to A? C से A के बीच में जो वोल्टेज है वो C से A के बीच में वोल्टेज है, दैट विल बी दी 120 डिग्री फेज 2 ऑफ द BC, सॉरी
ये जो वोल्टेज है इससे 120 डिग्री का फेस लेते हुए आपका ये वोल्टेज बिटवीन C2 है, दिस वोल्टेज इज C2 है, दिस इज 120 डिग्री इन फेस, एंड A to C के बीच का वोल्टेज भी अगेन 120 डिग्री इन फेस विद दिस, सो दिस इज अवर now what happens, what we are doing now, you see the voltage across A to D, if this voltage is VL, if this voltage is VL, ये आपका VL है, ये भी VL है, ये भी VL है, केवल डिफरेंस क्या है, फेस एंगल का डिफरेंस है, 120 डिग्री फेस एंगल का डिफरेंस है. सो इफ दिस इज VL, व्हाट विल बी दिस, व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज 120 डिग्री, तो ये क्या होगा, दिस इज 60 डिग्री. इफ दिस इज 60 डिग्री, सो व्हाट इज दिस, ये क्या होगा, sin theta is equal to this divided by this. Okay, so AD will be equal to this multiplied by sin theta. Sin theta is under root 3 by 2. Under root 3 by 2 VL means this, from here A to D, voltage across A to D means voltage across A to D will be, ठीक है. Now you see voltage and what is this, under root 3, what is the value of under root 3, कितना होता है 1.73 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 0.866. तो इसका मतलब क्या हुआ, नाउ इफ वी वांट टू मेक, देखिए इफ वी वांट टू मेक वोल्टेज पर टर्न शुड बी सेम इन बोथ द ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज पर टर्न शुड बी सेम. तो अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज ए और डी के अक्रॉस वोल्टेज BL का अंडर रूट 3 by 2 मीन्स ये क्या है 0.866 BL. If this voltage here is to be 0.866, तो इसका मतलब क्या है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स भी here in this transformer primary side, if the total number, अगर ये सेपरेटली होता तो नंबर ऑफ टर्न्स आर N1, वोल्टेज कितना होता VL, V1 और VL. तो अब हम चाहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, वोल्टेज पर टर्न शुड बी सेम, और वोल्टेज कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, टू मेक द वोल्टेज पर टर्न टू बी सेम वी हैव टू रिड्यूस दिस वोल्टेज. यहाँ पे जो आपका ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने यूज करना पड़ेगा, सो दैट्स द सेम वोल्टेज इज प्रोड्यूस. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर N1 में सपोज VL लग रहा है और हम चाहते हैं अंडर रूट 3 by 2 86.6, तो हमें इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स भी 86.6% ही यूज करना है. गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, मतलब अगर आपके 1000 टर्न्स हैं तो हमें 1000 में 0.86 का मल्टीप्लाई करें 866 टर्न से ही यूज करना है. मींस अगर ये प्राइमरी टर्न्स, प्राइमरी वाइंडिंग अगर ऐसे होता, सपोज करो दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग, तो हमें यहाँ पे यूज करना है, दिस इज ए. प्राइमरी वाइंडिंग में जितने भी टर्न है उसके केवल 86.6% टर्न्स यूज करने हैं, सो दैट वोल्टेज हियर विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3 by 2 into VL. इसका मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग में हमें 86.6 नंबर ऑफ टर्न्स केवल यूज करके, और आपको यहाँ ये कनेक्शन बनाना है, दिस इट मींस यू कैन से टोटल वाइंडिंग माइट बी लाइक दिस, तो हमने ए को यहाँ पे लगाना है. ओके, नाउ अब दिस पॉइंट इज क्लियर. नाउ अनदर पॉइंट इज कि व्हाट विल बी, अब ए टू बी, ए से बी के बीच में यहां से लेके यहां तक voltage is VL, voltage from here to here is VL, and voltage from A to C, A से लेके ये C, ये भी, because there is 3 phase supply, यहां से A और B के बीच में सेम वोल्टेज दे रहे हैं, B और C के बीच में सेम वोल्टेज दे रहे हैं, और A और C के बीच में सेम वोल्टेज दे रहे हैं. 3 phase सप्लाई है, बैलेंस 3 phase सप्लाई है, वी आर गिविंग द सेम वोल्टेजेस टू ऑल. तो अब लेकिन नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस A to D. अगर ये ए पॉइंट आ गया, दिस ए इज हियर, ए और डी के बीच में वोल्टेज कितना होगा, BAD, इफ यू सी BAD विल बी इक्वल टू, देखो ए और बी के, यहां हमने ए बी बी सी और सी वोल्टेज लगाया, ए बी प्लस BD, ए और डी के बीच में कितना होगा, VAB प्लस BBD, मतलब आपका BAB प्लस BBD. ओके, और ये कितना होगा BAB कितना वोल्टेज है,
वी ए बी, ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज लगा है, बी एल माइनस 120 डिग्री, इसमें लगा है बी एल माइनस 120 डिग्री, और बी और डी के बीच में वोल्टेज ये, हाँ बी और डी के बीच में वोल्टेज कितना है, बी एल बाई अंडर रूट 2, बी एल बाई 2, बी एल बाई 2 एंड एंगल 0। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, इसको अगर हम लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, वी एल ब्रैकेट में माइनस हाफ प्लस जे टाइम्स अंडर रूट 3 बाई 2 वी एल प्लस वी एल बाई 2। ओके, इसको cos थीटा प्लस जे साइन थीटा करके लिख सकते हैं, और ये 0 पे ही है तो नो प्रॉब्लम, दिस वी एल बाई 2 एंड दिस विल बी कैंसिल्ड, तो ये फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 3 बाई 2, अंडर रूट 3 बाई 2, अंडर रूट 3 बाई 2 जे एंड वी एल। ओके, तो इसमें आपका 0.866 वी एल और एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं कह रहा था ए और डी के बीच में आपका वोल्टेज वी एल बाई अंडर रूट 3 जो पहले भी निकाला है, अगर ये वी एल है तो वी एल बाई अंडर रूट 3, और वो एंगल क्या हुआ 90 डिग्री, दैट्स वाई दिस एंगल ए डी ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, नाउ secondary side voltage, suppose this voltage is secondary side voltage divided by primary side voltage, secondary side voltage suppose it is a Vs secondary कह लो या Va कह लो, Vs by VAD, यहाँ ये AD इसके अक्रॉस ये आपका लग रहा है VAD डिवाइड बाई VA इसको सेम इज Vs सेकेंडरी साइड वोल्टेज। तो अब देखिए Vs और VAD क्या है, दिस VAD है ना अंडर रूट 3 बाई 2 VL इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स, सपोज इसके नंबर ऑफ TNs है, PS है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड के टोटल नंबर ऑफ टर्न से टीवी टर्न्स सेकेंडरी साइड, टर्न्स प्राइमरी साइड, तो टर्न्स ऑन द प्राइमरी साइड ये TP थे, लेकिन हमने इसको कितना यूज किया है 86.6%, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अंडर रूट 3 बाई 2 TP। ओके, तो okay, so here this cancelled, Vs by VL is equal to, from here you can say Vs by VL is equal to TS by TP। now अब देखिए, अब ये सोचने की बात ये है, ये तो आपको पता लग गया 86 पॉइंट पे फेस 90 डिग्री होगा, और 86.6% हमने टर्न्स इसके यूज करने हैं और इसको मिडिल में लगाना है। अब देखिए यहाँ 3 फेज सप्लाई है, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस दिस और दिस मींस दिस वोल्टेज और दिस वोल्टेज, दे ऑल आर VL सेम है, ऑल आर सेम। नाउ अब इसमें न्यूट्रल कहां होगा, ये तो हाफ है, ये हाफ है और ये इसकी 86% है, तो न्यूट्रल कहां होगा, 3 फेज सप्लाई देंगे तो न्यूट्रल यहां तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये हाफ है, ये 86 है, ऐसे ये हाफ है, तो न्यूट्रल कहां होगा, न्यूट्रल माइट बी समवेयर हियर, होगा कि नहीं होगा, तो इसका न्यूट्रल वेयर विल बी द न्यूट्रल, तो इसके लिए आप देखिए लेट दिस डिस्टेंस इज x, ये हमारी डिस्टेंस है x। ओके, तो ये देखिए व्हाट इज दिस, यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू क्या होगी,
ये दिस वैल्यू विल बी VL बाई 2 इंटू √3 माइनस एक्स। इज दिस वन क्लियर? यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू हो गई, ये हो रही है कि नहीं हो रही है? ये टोटल वैल्यू ये है VL बाई √3 माइनस दिस एक्स। ओके, नाउ अब न्यूट्रल होना कहां चाहिए? न्यूट्रल ऐसा होता है कि जिस पे आपका ये थ्री फेस बन जाए, ये दिस ऑल आर इक्वल, ये जहां पे ये इक्वल फेस ए फेस बी मींस ये हमारा अगर डेल्टा कनेक्शन है तो दिस विल बी न्यूट्रल। ओके, तो ये न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है? इफ दिस इज VL तो ये इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? अदरवाइज अगर आपका ये VL यहां से तो ये निकल के आ रहा है, लेकिन अगर ये VL है लाइक दिस, देखिए दिस इसका पहले भी आपको बताया था, ये अगर आपका स्टार कनेक्शन में √3, ये आपको ध्यान है, अगर आपको स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार करते थे तो जिसका दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 डिग्री, तो उससे जो निकलता था उससे आपका अगर ये VL है तो ये क्या निकलेगा? VL बाई √3 निकलेगा। तो ये यहां निकलेगा, ये इसकी वैल्यू VL बाई √3 और इसके हिसाब से ये निकला। इट मींस दिस इज इक्वल टू VL बाई √3। यहां से हम यहां से क्या x निकाल सकते हैं, ये √3 या मल्टीप्लाई, इफ यू मल्टीप्लाइड हियर √3 तो व्हाट विल बी देयर? √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 VL बाई 2 √3 माइनस x इज इक्वल टू VL। ओके, एंड मल्टीप्लाई दिस, हियर इट विल बी 3 बाई 2 VL और ये भी VL है माइनस VL इज इक्वल टू √3x। ओके, इज दिस वन क्लियर? 3/2 VL और ये VL, तो ये क्या आ गया? हाफ VL। इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू 1/2 √3 VL। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, ये जो है इसमें √3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, √3 का डिवाइड कर दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इफ यू मल्टीप्लाई √3 हियर एंड हियर तो ये क्या हो गया? √3 VL और ये 1/3 यहां लिखो और दिस विल बी दी 2। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? √3 VL बाई 2, √3 VL बाई 2 आप देखो पहले, ये √3 VL बाई 2 ये क्या था? नहीं, क्या वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, ये देखिए √3 VL बाई 2 ये क्या है? VAD। तो यू कैन से x इंटू AD इज इक्वल टू 1 इंटू 3। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल विल बी शिफ्टेड हियर, जो हमारा AD था उसके 1 और 3 के रेशियो में, मतलब इसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो 2 पार्ट हियर 1 पार्ट हियर, तो यहाँ पे आपका न्यूट्रल होगा। ये पॉइंट क्लियर है? नाउ इफ लोड इज कनेक्टेड, ये तो पता लग गया ये 90 डिग्री पे हो गए, ये 90 डिग्री पे हो गए, या न्यूट्रल हो गया, और ये दोनों मतलब VA और VB दे विल बी 90 डिग्री टू ईच अदर। अब सपोज यू कनेक्ट द लोड हियर, अगर आपने यहाँ पे एक लोड लगाया, सपोज यू कनेक्ट लोड हियर और यहाँ पे भी लोड लगाया, ओके, तो C के बीच में सपोज यहां करंट हमारी जो जा रही है IBC, यहां से तो करंट IB है, दिस करंट इज IB,
और तो ये आई बी होगी, ये अगर सपोज करो इसमें आई बी सी, ये बी सी, तो ये आई बी होगी क्या, आई बी, दिस आई बी विल बी इक्वल टू आई बी सी माइनस, ये यहां से करंट आ रही है आई ए, दिस करंट इज कमिंग आई ए, तो ये आई बी क्या होगा, आई बी इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई बी सी माइनस आई ए वाई टू। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये अगर आई बी सी था, आई बी सी में ये आई ए बाई टू आई ए, क्योंकि ये जो आई ए था आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया, क्योंकि ये सिमिलर है, तो आई बी सी माइनस आई ए बाई टू, ये करंट हो गई आई बी। ऐसे ही आपका आई सी, अब आई सी क्या होगा, आई सी मतलब ये आई सी क्या होगा, ये आई ए बाई टू इधर आ रहा है और आई बी सी इधर आ रहा है, तो और इसका डायरेक्शन नहीं है, सो इट इज माइनस आई बी सी माइनस आई बी सी माइनस आई ए बाई टू। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहां देखें, आइए देखिए, ये आई ए है, तो ये आई ए था ना, और आई ए बाई टू 1 2 3 इक्वल रेशियो में डिवाइडेड था, तो आई ए बाई टू क्या हुआ, यहां तक ये सेम, इसका हाफ करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू आई ए बाई टू, दिस विल बी आई ए बाई टू, सो इट इज आई बी सी, इट इज आई बी सी माइनस आई ए बाई टू, और ये माइनस आई बी सी बाई ये आई ए बाई टू माइनस आई ए बाई टू, तो ये हमारा इसका फेसर डायग्राम बन गया लोड का। मीन्स अगर इसमें यूनिटी पावर फैक्टर लोड है, इफ लोड इज यूनिटी पावर फैक्टर है, तो हमारा वोल्टेज मीन्स वोल्टेज एंड करंट दे आर इन द सेम फेस, सो ये वोल्टेज का फेस है वही करंट का फेस होगा और ये फेसर डायग्राम बनेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ क्वेश्चन है? हाँ जी, सर ये आई बी की जो वैल्यू लिखी है इसमें आई ए बाई टू क्यों दिया, कहाँ लिखा है ये? हाँ, ये अगर हम टर्न्स रेशियो सेम मान लें, N1 बाई N2 इज इक्वल टू 1, प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड में जैसे नॉर्मली हम कहते हैं टर्न्स रेशियो सेम, N1 बाई N2 इज इक्वल टू V1 बाई V2, तो उस केस में अदरवाइज दिस विल बी स्मॉल आई ए बाई टू, अदरवाइज क्या होगा, ये स्मॉल आई ए बाई टू हो जाएगा। सो सिंस वी अज्यूम द टर्न्स रेशियो सेम, दैट्स व्हाई द सेम करंट विल बी देयर। ये हाँ, ये तो अभी बताया था न्यूट्रल पॉइंट। देखिए ये न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि ये हाफ है, ये 86 है। अब देखिए ये हाफ है, ये 86 है, और वोल्टेज इक्वल है, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर नहीं होगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर नहीं होगा ना, तो कैसे स्टेबलाइज, इसका मतलब न्यूट्रल आपका देयर विल बी समवेयर एल्स, इसके बीच में होगा, तभी तो दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू बीए विल बी इक्वल टू बीबी, तभी तो हो पाया। अगर बीए फेस ए वोल्टेज इक्वल टू फेस बी वोल्टेज, देन ओनली it is only possible when neutral is not at this point, neutral is somewhere else, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज, यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज, और यहां से लेके यहां का वोल्टेज, अदरवाइज ये तो आधा है ये ज्यादा है, तो वोल्टेज सेम नहीं होगा। वोल्टेज हमने सेम लगाया हुआ है, बाहर से सेम सप्लाई, 3 फेज वोल्टेज है, इट इज सेम, फेस ए का वोल्टेज फेस बी का फेस सी का, तो न्यूट्रल हमें कहीं बीच में होना पड़ेगा। ऐसा वाइस वर्सा पॉसिबल है? हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल है? 3 फेज टू 2 फेज एंड टू सेम, सो इफ यू गिव द 2 फेज सप्लाई हियर, यू विल गेट द, हमेशा ये वाइस वर्सा पॉसिबल होता है, जैसा आपने यहाँ दिया तो ये मिला, और जब आप यहां से सप्लाई जाएंगे तो ये मिलेगा। नाउ
दिस इज अबाउट द 3 फेज टू 2 फेज। अब नेक्स्ट इज द 3 फेज टू 6 फेज कन्वर्जन। 3 फेज टू 6, ये बहुत सिंपल है और बहुत थोड़े से टाइम का है। 3 फेज टू 6 फेज कन्वर्जन, ये इसका बेनिफिट जैसे वहां बताया था, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन, क्या बताया था, आर्क फर्नेस वगैरह में यूज होता है। ये 3 फेज टू 6 फेज कन्वर्जन, 3 फेज का मतलब तो आपका इधर फेज ए, फेज बी एंड फेज सी। अब हमें 6 फेज बनाना है। प्राइमरी साइड में तो 3 फेज सप्लाई आ रही है, देखिए प्राइमरी साइड में तो 3 फेज सप्लाई आ रही है, फेज ए, फेज बी, फेज सी। सेकेंडरी साइड में हमें 6 फेज बनाने हैं। तो सपोज ये जो सेकेंडरी की वाइंडिंग थी, ये सपोज वाइंडिंग थी आपका, सपोज करिए ये A1 A2 और ये A1 से A2 था, इसको हमने 2 पार्ट में कर दिया, 2 पार्ट में कर दिया और 2 पार्ट में करके इसको सपोज करिए आपको ये यहाँ पे ऐसा पूरी वाइंडिंग ऐसे थी। अब ये पूरी वाइंडिंग ऐसे थी, इसको हमने सब, अब देखिए सपोज एंड हियर यू आर टेकिंग आउट, इसे ओपन छोड़ दिया ना। प्लीज ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। अगर आपका देखिए ये VA है, ये BB है, ये BC है, तो यहां पे वोल्टेज इसका यहां पे वोल्टेज क्या होगा, अगर टर्न्स रेशियो ये N1 एंड N2 आर सेम मान लो, अदरवाइज जो भी रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। इसके N1 और N2 सेम है और आपने इसे हाफ कर दिया, या हाफ कर दिया, तो अब ये यहां तो ये न्यूट्रल है, यहां ये न्यूट्रल हो गया। अब इसमें जो वोल्टेज है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगा, देखिए ये इसके साथ ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी है, तो अगर ये वोल्टेज VA1 A2 है तो ये सेम डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कॉइल इसके साथ कपलिंग में है, तो जो वोल्टेज ये है वही वोल्टेज ये होगा। फर्क क्या होगा, फेज सेम होगा, मैग्नीट्यूड में फर्क होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसके भी N1 थे, इसके भी N1 थे, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हाफ होगा। मतलब सेम डायरेक्शन, ये न्यूट्रल है तो इसी के इसी के इसमें आपका यहाँ ये न्यूट्रल होगा और ये वोल्टेज ऐसा VA होगा और इसका ये इस डायरेक्शन में VC होगा और इस डायरेक्शन में VA होगा, दो BB। ठीक है, क्या इसमें क्या फर्क है, मैग्नीट्यूड का फर्क है केवल। अब देखिए यहां वोल्टेज सपोज करिए यहां वोल्टेज आपका ये है स्मॉल, ये है VA, तो यहां क्या वोल्टेज होगा, इस टर्मिनल पे क्या वोल्टेज होगा, यहां